Hello, friends. So let's take up today's newspaper. The interest try to understand what is the goal and what are the key ideas with respect to both prelims, mains, and the interview, and also from different perspective of the general studies. What today's newspaper is talking about. On the front page, there is India and Bangladesh. अब क्वेश्चन जो पहले आता था वो आता था भारत और बांग्लादेश के बीच में इरिटेंट क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है किस प्रकार से there can be more positive diplomatic relations because we had always a kind of a very strong relationship with Bangladesh, but there had been irritants जैसा कि मैंने word use किया. But अब क्या हो रहा है? Emerging stronger together. So the question, even if it comes in the mains examination, it will ask what are the new frontiers? What are the new areas जिसमें इंडिया बांग्लादेश दोनों आपस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिकॉज हर एक्सीलेंसी शेख हसीना जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इट इज शी इज कमिंग टू इंडिया. तो आप देखिए अडानी, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, इंडियन ऑयल, गोदरेज, आयन एक्सचेंज, पीडीलाइट, लार्सन एंड ट्यूब्रो, Numaligarh Refinery Limited, and so on. They all are very key part of the development of Bangladesh, the new development that they are showing. Today is Teachers Day, so we will be thinking and talking about teachers. What is the role of teachers not only in schools and colleges but also in preparation for the civil services? क्या वाकई एक टीचर की जरूरत है? क्या वाकई एक टीचर से ज्यादा की जरूरत है? क्या वाकई एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी टीचर होता है? क्या एक इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर इज अ टीचर टू द सिटीजंस? आखिर टीचर का इतना महत्वपूर्ण रोल क्यों है एंड व्हाई इट इज रेलीगेटेड टू साइडलाइंस इफ इवन इफ इट इज? और क्या टीचर का मतलब सिर्फ रोट लर्निंग रह गया है? क्या टीचर का मतलब है कि आपको सिर्फ अच्छी बातें बताए? क्या आखिर होता क्या है टीचर? दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू सी व्हाट एवर इज गिवन इन द context of the newspaper today. The front page news is there. We have one of the foremost great and also a very very phenomenal industrialist, Cyrus Mistry ji, who was former head of Tata Sons. He killed in car crash. It is one of the sad and the fatal news. But then in this context, not in the mains examination directly, question आना बहुत मुश्किल है. But then you have to have certain, what I should say, certain data about road safety. That is very very important. Opposition party Congress is talking about price rise and joblessness. तो आपको सोचना ये है कि किस हद तक ये बात सही है. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा प्राइस राइज और जॉबलेसनेस के ऊपर, लेकिन आएगा कैसे क्रिएट की जाए. तो आप ये सोचिएगा, देखिएगा. Pakistan is using Indian assistance for their own families and not people in need. That means India-Afghanistan relations will not be completely defined by what Taliban is talking about. The article says that India is sending assistance under humanitarian assistance. India जो दे रही है United Nations World Food Program के तहत, it is not being delivered to the last mile connectivity or the ground people. तो आपको सोचना है कि इंडिया इसमें आखिर कर क्या सकता है. इंडिया पाकिस्तान के होते हुए, चाइना के होते हुए, रशिया के होते हुए, what kind of stakeholder India is in Pakistan or India? Because this article is talking about Ahmad Shah Massoud, who was called as Lion of Panjshir. So please see the location, see the geographical location of Panjshir Valley, and also see the background. क्योंकि जैसा मैंने इंडिया बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में बोला, ऐसे ही इंडिया अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बैकग्राउंड नहीं आने वाला. बैकग्राउंड हर जगह लीनियर फॉर्म में अवेलेबल है, विकीपीडिया से लेकर और दुनिया भर के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है. उसका कोई रोल नहीं है. उसका रोल सिर्फ बात को समझने में है, वो कोई भी देख सकता है, लेकिन कोई है कि आप आगे की बात सोचे, और वो ही एक तरीका है, वही एक फिनोमेना which is saying कि भाई प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे. बट मोट उसके बाद वो कह रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट विल आल्सो बी कंटिन्यूइंग. स्कॉलरशिप जो मिलेगी वो पहले महीने के मिलेगी, फिर उसके बाद मंथली रैंक लिस्ट ऑफ प्रीलिम्स क्वालिफायर विल बी पब्लिश्ड फॉर मंथ, ऑनलाइन और ऑफलाइन. इनोवेटिव, वेरी वेरी इनोवेटिव. बट द क्वेश्चन अराइजेस, क्या रियली में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को ऐसा कुछ और चाहिए कि क्या यही चाहिए? आखिर इतने टफ एग्जाम को चाहिए क्या? आखिर इतने कम लोग क्यों क्वालिफाई कर पाते हैं? लेकिन कमाल की बात क्या है, बहुत इजी क्वालिफाई कर लिया. मोस्ट ऑफ द वेज दैट पर्सन इज गोइंग टू क्वालिफाई प्रीलिम्स अगेन. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम सेइंग, नॉट इन एवरी टाइम. उसके भी प्रोसेस हैं, उसके भी आइडियाज हैं. देयर आर सर्टेन मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज व्हिच वी टीच एज अ पार्ट ऑफ आवर different courses for individual and also small group candidates. If you need so, if you think so, get back with all your details. We will try to best help to you. रोहिणी नीलखेनी is talking about why India's wealthy need to do more to boost civil society. तो आपसे मैं पूछता हूँ कि समाज, सरकार बाजार आपस में क्या संबंध है, और भारत के वेल्दी को किसी भी वेल्दी समाज में कैसे उनका रोल है सोसाइटी के लिए? तो ये जनरल स्टडीज पेपर 1 का क्वेश्चन हो सकता है, एथिक्स का क्वेश्चन हो सकता है. साथ साथ में इट इज a वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड ऑल्सो साइकोलॉजी. In context of sociology, when you talk about stratification, when you talk about need, and even when you are talking about paper 2 where Indian society is in very much detail, then it becomes very very important.
साइरस मिस्त्री जी की अगर हम बात करें, यू कैन सी हिम, इट इज अ ग्रेट पर्सनालिटी एंड देन हेयर होल हिस्ट्री इज गिवन कि उनका रोल क्या था टाटा ट्रस्ट में, और इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट हाउस वो कैसे बने, उन्होंने कैसे प्लेज किया, एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर थे, एंड देन हाउ ही वेंट ऑन टू रेज their business to very high levels in a very ethical manner. But the key point for you as a future civil servant आपको देखने की बात है कि बहुत ही genuine, बहुत ही humble, और साथ साथ में one of the most smart people थे वो, the one who is going to be stand by his ideas, the one who is talking very humbly, but one who is not backing out. So values जो थी, उन्हीं values की वजह से उसको उनको, I mean to say honorable साइरस जी को, दो the one who is no more, उनको नो वॉइस सर, नो वॉइस। सो द वैल्यूज एंड द आइडियाज जो साइरस साहब शो करते थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लेकर, और जो सब जगह उनका रोल रहा है, और अभी जो उनके सक्सेसर थे एन चंद्रशेखरन साहब ने भी वो सारे आइडियाज, वो सारे प्लान्स को वो उन्होंने शो किया, जो सारे प्लान्स टाटा साहब शो, मतलब आई मीन टू साइरस साहब शो करना चाहते थे। बट द की पार्ट इज अबाउट इज द पारसी कम्युनिटी, और वो जहाँ से आ रहे थे वो भी एक बहुत ही फेमस पारसी साइट है इन गुजरात। बॉम्बे पारसी पंचायत फर्टिलिटी प्रोजेक्ट है, इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 1 और ऐसे में यूज कर सकते हैं। देर इज समथिंग कॉल्ड जियो पारसी प्रोग्राम, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ इनके बारे में नहीं है, क्योंकि पारसी कम्युनिटी का हमारी सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि दे हैड बीन फिनोमिनल, दे हैड बीन अमेजिंग, दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट देम बेसिकली। वो साइट, वो पिलग्रिमेज साइट, उसका नाम है उडवाडा, और उदवाड़ा साइट है वो, गुजरात में। यू प्लीज चेकअप, यू चेकअप एटलस एंड यू चेकअप द गूगल लिंक, आप गूगल सर्च कीजिएगा एंड यू विल बी गेटिंग ऑल डिटेल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, देयर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एवरीडे हम पढ़ रहे हैं कि एक 25 साल के व्यक्ति ने अपनी माँ को मारा और साथ में सुसाइड कमिट किया, पता चला कि ही हैज बीन डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग जॉब। सो अनएम्प्लॉयमेंट, प्लीज प्लीज, चाहे इकोनॉमी पढ़िए, चाहे सोसाइटी पढ़िए, चाहे पॉलिटी पढ़िए, चाहे पीएसआईआर पढ़िए, चाहे एंथ्रोपोलॉजी पढ़िए, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए, प्लीज ट्राई टू फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। यही यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू इन डिफरेंट वेज, विदाउट दैट देयर इज नो वे फॉर यू। That is what I tell students also, and they come with innovative ideas, they come with thinking process, and that's how we write answers, that's how we try to raise the bar. Whatever is being done in the coaching industry, we try to raise the standard beyond it. Guru Brahma, Guru Vishnu, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्वे श्री गुरुवे नमः। ये जो श्लोक है, ये हमें याद दिलाता है कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु की महत्ता क्या है। हमारे माता पिता धरती पर हमारे पहले गुरु हैं, बट टीचर्स, वेल विशर्स, सीनियर्स एंड ऑल द लीडर्स, वो भी हमारे गुरु हैं। दैट इज वाई वी ऑल मस्ट पे होमेज, नॉट जस्ट टुडे बट ऑल्सो एवरी डे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, we have uh, we have the idea, we are talking about student advisory board। दिल्ली गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड्स बनाया, और व्हाट दे वांट टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन वेरियस लीडरशिप रोल्स एट द स्कूल लेवल। यस, डेफिनेटली ऐसी चीजें कल को स्टूडेंट्स को इक्विप करेंगी, वो सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन को भी देख सके, जो कि ऐसा शुरू भी हुआ है। बट लेट मी टेल यू इन अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड प्राउड मैनर दैट टू आवर कैंडिडेट्स, हम अपने कैंडिडेट्स को ऑलरेडी इस लीडरशिप स्किल के लिए प्रिपेयर करते हैं। आवर इज नॉट जस्ट ए कोचिंग क्लास सिस्टम, आवर इज वेरी वेरी अनकन्वेंशनल एंड वेरी वेरी डिमांडिंग सिस्टम, जिसमें व्यक्ति कोचिंग करने के बाद भी अपने आप को 100% इम्प्रूव पाता है। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज गेट बैक टू मी ऑन माई ईमेल एंड आई विल ट्राई टू गिव यू रेलिवेंट एंड ऑल्सो ऑब्जेक्टिव क्वेरीज। एक और है सेल्फ टॉट आर्टिस्ट का एग्जांपल यहाँ है कि कैसे एक फॉर्मर ऑटो ड्राइवर जो कि एक गार्डनर था, उन्होंने आर्ट के वर्ल्ड में अपना नाम कैसे कमाया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है कि सिविल सर्विसेज कोई एंड नहीं है। आपके अंदर भी कोई प्रतिभा है, कोई कला है, कोई कोई बहुत ही हुनर है, तो वो हुनर एग्जामिनेशन के बावजूद भी बाहर निकल कर आएगा। इसलिए अपने मन को दबा कर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने मन को पॉजिटिव सजा देकर पढ़ने की जरूरत है। एग्जाम एक कला है, एग्जाम एक स्किल है, एग्जाम इज नॉट अबाउट द कॉलेज थिंग, एग्जाम इज नॉट अबाउट लाइक स्कूल सिस्टम। दिस एग्जाम इज वेरी वेरी डिफरेंट, सो प्लीज रिस्पेक्ट इट बट एट द सेम टाइम एंजॉय इट। राहुल केजरीवाल, येचुरी सब ऑपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस आइडिया दैट हाउ देयर कैन बी इन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी ऑपोजिशन पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, अगर वो एक साथ सामने आएंगे तो उससे क्या भला हो सकता है।
तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या क्या इंटरनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, सोचिए और बताइए। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन के स्ट्रेंथन होने के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियाज दिए गए हैं, इस पर प्रकाश डालिए। साथ में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टीज को लोगों के लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी आप प्रकाश डालिए। Then on the sideline, it is there that how BJP's ex-chief minister, Mr. B.S. Yadurappa, he is given due, regard and also space by the honorable Prime Minister. It showcases that loyalty and also commitment and hard work never goes waste. दूसरा, अगर आपको भी कोई अगर आपसे कोई पूछे भैया आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हैं, आप पंचायत की मीटिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप भी टिफिन मीटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है कि आप किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में चीजें करेंगे, तो उसका भी एक एग्जाम्पल अभी हम उठाएंगे। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार का उप कमेटी नवरत्न अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्लीज चेक कीजिए, गूगल करके देखिए कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का आखिर रोल क्या है, ये कैसा पीएसयू है, क्या है इसका रोल इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। नाउ हमारे ऑनरेबल जयशंकर साहब, आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ही इज सेइंग कि इंडिया शुड नॉट इंटरफेयर इनटू द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। आज तक का ये जो डॉगमा, आज तक का जो स्टीरियोटाइप, आज तक का जो ये प्रेजुडिस हमने अपना रखा है, क्या इसको हमें तोड़ना चाहिए? तो आप मुझे बताइएगा वेदर वी शुड डू इट और नॉट। अगर हमें करना भी है तो कितने एक्सटेंट तक करना है, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी रही है नॉट टू इंटरफेयर इनटू एनीवन्स अफेयर्स, वेदर वो बर्मा हो, वेदर वो नेपाल हो, वेदर वो भूटान हो, वेदर वो श्रीलंका हो। बट देन डोंट यू थिंक द टाइम हैज कम? लेकिन वहां उन्होंने लिखा, जयशंकर साहब ने, ओल्ड हैबिट्स दे हमें हमें टाई रखती हैं, लेकिन लेकिन वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड के चैलेंजेस, इंडिया के चैलेंजेस डिफाइन करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या करना नहीं है। अफगानिस्तान की जैसे मैंने बात की, अहमद शाह मसूद साहब का जो जिक्र हमने किया था इन द बिगिनिंग ऑफ आवर लेक्चर टुडे, तो वो कहना चाहते हैं कि अगर मान लो तालिबान को नहीं रोका गया, अहमद मसूद जो है अपने फादर की पेंटिंग के सामने उन्होंने अहमद शाह मसूद के सामने दिया है, जिनका लायन ऑफ पंजशीर कहा जाता है, जो के खिलाफ बहुत ही रेजिस्टेंस जिसने दिया भी है। तो उनका कहना है कि आप देखिएगा, you will find that with time violence in Kashmir will increase. India will provide humanitarian assistance to Afghanistan, but still violence will increase in Kashmir. ये हमारे लिए बड़े दुख की और बहुत ही चेतावनी की बात है। तो आपसे कल को क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लीज सजेस्ट की आइडियाज हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन कश्मीर, या फिर टेररिज्म के ऊपर डायरेक्ट एक बिग क्वेश्चन आता है, क्योंकि कश्मीर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से डिस्प्यूट नहीं मानती है, वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। आपको अगर कोई सोल्यूशन देना भी है तो विद इन दैट फ्रेमवर्क यू हैव गिव। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी डायरेक्टली लिख के बोलें इंडिया, इन सर्टेन मैनर डेफिनेटली यू आर राइट, बट देन कैसे? ये कि ऑप्शन सिर्फ आइडियलिस्ट ही नहीं होने चाहिए, वो प्रैक्टिकल और स्पेसिफिक भी होने चाहिए। केरला, फॉर्मर केरला हेल्थ मिनिस्टर ने डिक्लाइन किया मैग्सेसे अवार्ड। अभी हम 2 मिनट में बात करेंगे कि मैग्सेसे अवार्ड जो रेमन मैग्सेसे ने किया था, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस थे वो, बट ही वाज अगेंस्ट कम्युनिज्म। तो इसी बहाने आपको पता लगना चाहिए कि आखिर यार कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी क्या है ऐसी कि जो कम्युनिस्ट रूल है केरला में, इट इज रिफ्यूजिंग रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो इसकी हम 5 मिनट बाद बात करेंगे। इन फर्स्ट बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफिस गोज पेपरलेस। डेफिनेटली बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट के डीएम आनंद शर्मा जी ने एक पेपरलेस मुहिम चलाई, एंड देन ऑल लैपटॉप्स यू विल फाइंड, ई ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन यू विल फाइंड। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार जो कि कंप्लीटली पेपरलेस चला गया है। जब तक आप अपना एग्जाम देंगे ये चीजें और फिनोमिनली बढ़ चुकी होंगी विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स। तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 3 दिन तक आप अपनी फाइल अपने टेबल पे रख सकते हैं, इसके बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। ऑलरेडी मैं तो इसी तरीके से वर्क करा रहा हूँ। आई एम ऑल्सो टीचिंग यू सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन वैल्यूज जो किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी नहीं मिलेंगे। अरे भैया 500 लोगों के बीच बैठकर जहाँ टीचर से आपको बात भी नहीं हो सकती है, और टीचर तो आजकल, मैं आज तो टीचर्स डे है तो मुझे कहना नहीं चाहिए, टीचर आजकल मतलब मोस्ट इजीली अवेलेबल भी है उस सेंस में अगर मैं कहूँ तो, लेकिन क्या आप खुद में एक टीचर नहीं है? तो सोचने की बात यह है कि 3 लाख पेजेस का जो 5,000 फाइल्स हैं, जिसमें 34 पैसे पर पेज लगते हैं, वो स्कैन करना पड़ता है, और उसको उन्होंने डिजिटाइज कर भी दिया है। उन्होंने प्रोसेस बोला टू, उन्होंने इस प्रोसेस ने टाइम लिया, और 34 पैसे पर पेज के हिसाब से उन्होंने 3 लाख पेजों को उन्होंने डिजिटाइज भी कर दिया। लेकिन सारे के सारे एफर्ट्स अभी जो है कोसी रीजन के अंदर बहुत सारा फायदा दिला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डीजल और आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी पड़ती है, वहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गई है, क्योंकि ड्राउट प्रोन एरिया है। दूसरा ये है कि अनलाइक पास्ट, जहां पर एक आदमी के ऑफिस में ना आने की वजह से पूरा सिस्टम रुक जाता था, वो सिस्टम बंद हो गया। अब तो सफर नहीं होता है, वो आप घर से बैठ के भी कर सकते हैं। तो जब आप डीएम बन के घर से बैठ के काम कर सकते, तो भैया हम पढ़ा क्यों नहीं सकते? क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये मोनोपोली बाजार की रहेगी? क्या आपको हमेशा ब्रांड ही आकर्षित करते रहेंगे, या आपकी बुद्धि भी कभी आपको आकर्षित करेगी? यही डिसाइड करेगा वेदर यू आर गोइंग टू क्रैक एग्जाम सूनर और लेटर। तो ई ऑफिस इज द नीड ऑफ द टाइम। तो हमारे यहाँ मानना है ई स्टडीज, स्मार्ट स्टडीज विद एन अनसरकारी एटीट्यूड एंड अनकन्वेंशनल एटीट्यूड इज ऑल्सो नीड ऑफ द टाइम। मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एक्स सीजीआई ने कहा कि कोर्ट
आर एक्सपेक्टेड टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन इन सर्टेन सिचुएशंस, ट्रू और फॉल्स। आपको सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने बोला और क्या ये बात सही है कि गलत है, कि अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए जो है कोर्ट्स को। कभी कभी कोर्ट, रमन्ना साहब बोल रहे थे, उन्हें जस्टिस वी आर कृष्णा अवार्ड मिला कैपिटल फाउंडेशन सोसाइटी से, तो उन्होंने कहा कि टसल थी एक समय में पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, जिससे पता चला कि भाई पार्लियामेंट अपनी सुप्रीमसी चाहती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप होल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सीजीआई जो कि अभी रिटायर हुए हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट शुड बी डिस्पैशनेट इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट डिस्पैशनेट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। पीटी में भी क्वेश्चन आता है कमिटेड जुडिशरी, अभी प्रीलिम्स से क्वेश्चन आया था 2 साल के अंदर अंदर, कमिटेड जुडिशरी वर्ड था। लेकिन कमिटेड जुडिशरी होगी तो आप डूब जाओगे, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होगी तो आप डूब जाओगे। कमिटेड टीचर भी नहीं चाहिए, गैलरी को प्ले करने वाला टीचर भी नहीं चाहिए, जो आप सुनना चाहते हो आपको मोटिवेट करने वाला टीचर भी नहीं चाहिए। अरे जो सुनने को चाहिए, जो होना चाहिए वो बताने वाला होना चाहिए। पर ऐसा करेंगे तो आपको लहर के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो अभी मैंने बात की थी कि कैसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड को डिक्लाइन किया कम्युनिस्ट रूल ने केरला में, और उसने कहा कि बिकॉज इट वाज अगेंस्ट कम्युनिज्म। यहाँ पर हमारा एक न्यूज आर्टिकल आया है कि हमने यूएसएसआर और चाइना में एट्रोसिटीज की हैं, इसीलिए वो सीपीआई को छोड़ रही हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन ये नहीं कि कौन छोड़ रहा है कौन नहीं छोड़ रहा है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कम्युनिज्म ने, कम्युनिज्म होते हुए यूएसएसआर और चाइना में क्या एट्रोसिटीज हुई हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सोशलिस्ट रिजीम्स में, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आप अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे न्यूज़पेपर अपना खोल के साथ में रखिए या बाद में देखिएगा, दोबारा वीडियो को विजिट कीजिएगा, तो वो कहना चाहते हैं कि सोशलिस्ट रिजीम्स ने लोगों के राइट्स को छीन लिया है। यानी टोटलिटेरियन रिजीम हो गया है वो, जहां पर इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, कम्युनिटी राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए इसी वजह से ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी इज अबाउट द पीपल, डेमोक्रेसी इज अबाउट फ्री थिंकिंग, डेमोक्रेसी इज अबाउट स्टेट रिस्पेक्टिंग द पीपल्स आइडियाज। तो क्या ऐसा चाइना और यूएसएसआर ने नहीं किया है? यही यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर 1 का टॉपिक पूछता है। वहां पर है आपके कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं से हमारा आंसर निकल के आ रहा है कि आखिर कम्युनिज्म है क्या। तो ये डिस्कशन हम किसी और के साथ पहले नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपके साथ किए ताकि आप बात को समझो और आगे बढ़ो। ओके, अगला बात आता है कि राम टेम्पल हब बन रहा है एक तरीके से, राम टेम्पल हब। तो आप सोचिए कि इसी प्रकार से जो है किस प्रकार से और डेवलपमेंट हो सकता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, रेलवे स्टेशन आ रहा है, टाउनशिप आ रही है, रिवर रिवर क्रूज भी आ रहा है और अदर प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। दैट मीन दैट इज हाउ वी हैव टू हैव आवर ओन वे ऑफ डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल होना चाहिए, इको सेंसिटिव होना चाहिए, प्लूरल कम्युनिटी के आइडियाज को दिखाना चाहिए, और उसके बाद से लोकल कम्युनिटी को जो है लिवलीहुड भी मिलना चाहिए। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। टीचिंग इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म, ये आ जाएगा आपके एसए का टॉपिक हो जाएगा। टीचिंग इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म आपके एसए का टॉपिक। फिर एथिक्स के अंदर एक कोट आ जाएगा, फिर आप देखिएगा कि आप इसको कैसे लिखेंगे, क्या वाकई ऑप्टिमिज्म है भी कि नहीं है। अगर ऑप्टिमिज्म है तो क्या रेशनल ऑप्टिमिज्म होना चाहिए कि रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, आखिर होना क्या चाहिए। तो टीचर्स डे आ गया, पोस्ट पेंडेमिक में क्लासरूम की बात हो ही रही है, हम भी उसी तरह से ऑनलाइन पे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल अटेंशन, यस आई हैव बीन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल अटेंशन फ्रॉम लास्ट 10 years. And even within Vajiram, when I was teaching on the from the platform, I used to talk to students, so there will be voice going to the right messages. राइट मैसेज जिसके माइंड में है उसको आवाज जरूर जाएगी। तो टीचर की ऑटोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट ऑटोनॉमी, आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट क्लैरिटी। बच्चे को सक्सेस मिलना हमारा प्राइम मोटिव है, लेकिन अगर नहीं भी मिल रही है तो कम से कम वो कल को दुखी नहीं हो सकता कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने मतलब मैंने और स्टूडेंट ने मिलकर कोशिश नहीं की। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी टीचिंग प्रोफेशन को प्रमोट करती है, टीचिंग को मोर रिवार्डिंग बना रही है, लेकिन हम सिर्फ टीच नहीं कर रहे हैं, हमें तो इनकलकेट करना है, हमें तो सिखाना भी है। क्योंकि हर बच्चा जरूरी नहीं है कि वो स्किल्ड हो, लेकिन हर बच्चे में, हर एस्पिरेंट में एक खूबी है कि वो टॉप तक पहुंच सकता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट विदाउट कोलैबोरेशन इज नॉट पॉसिबल, एवर माइंड ऑप्शनल। तो ये जो बातें हैं, ये जो मैंने अभी भी कही टीचर्स डे वाली, ये एथिक्स का पार्ट आ जाती हैं, सॉफ्ट स्किल का पार्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेटर में भी होने चाहिए। चैलेंजेस को उसको समझना पड़ेगा और उसको भी कल को फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप खुद ही, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मेरे को तो मैथमेटिक्स नहीं आता, मेरे तो थिंकिंग स्किल्स पुअर है, मेरे राइटिंग स्किल्स पुअर है, मैं तो 3 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने तो पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ ली, मेरी तो लक्ष्मीकांत 4 बार हो गई, मैंने तो इस आज ही राम, और मैंने तो ये कल के किसी कोचिंग से कुछ भी कर लिया है, तो उससे तो काम नहीं होने वाला, दैट इज फॉर श्योर। That is obviously, but that is how the market runs, so that is not required. Anyways, I am coming back to another question. एनर्जी आत्मनिर्भरता 40, अपने आप में ये ऐसे है, अपने आप में ये यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 3 का आंसर भी है और एथिक्स की केस स्टडी भी है। मैं फटाफट से आपको 10 बातें बताऊंगा कि जिसमें सिक्योरिटी की बात की है। इसके बाद पढ़ने के बाद आपको कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ने की कहीं से कोई जरूरत ही नहीं है। ये आर्टिकल अगर आप अच्छे समझ लेते हैं, यू हैव टू जस्ट लिंक और समझते हैं तो
पहली बात, एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि आप फॉसिल फ्यूल्स को खत्म कर दें, क्योंकि अमेरिका को अगर आप पढ़ेंगे तो 4 डिकेड लगे थे स्टीम पावर से इलेक्ट्रिक पावर में आने में, और अपने में आप क्या चाहते हैं कि हम 5 साल में ही हो जाएं? ऐसा असंभव है। सो डोमेस्टिक रिसोर्सेज जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स के हैं उनको हमें बढ़ाने की जरूरत है। हमारी जियोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम सक्सेसफुल जब हो सकते हैं जब अपने रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, डेवलप करेंगे। और जो हमारी पीएसयूज हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हाई रिस्क और कैपिटल इंटेंसिव जॉब है, मेरे कीवर्ड्स को ध्यान रखिए, लिखते भी रहिए अगर आप लिख सकते हैं तो, नहीं तो बाद में दोबारा सुनकर लिखिए। तो क्या ये बात सही है कि आप प्राइवेट सेक्टर को ना लेके आएंगे और पीएसयू जैसे ओएनजीसी है वही सिर्फ काम करें? पहले तो आप इसी बात का मुझे उत्तर दीजिएगा। मैं दोहराता हूँ, डू यू थिंक द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन द एनर्जी सेक्टर दे आर इनफ टू टेक इंडिया टू इनटू अ डेवलप्ड वर्ल्ड? प्लीज थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू मी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने फोरकास्ट किया कि विंड और सोलर एनर्जी जो है 51% हो जाएगी इंडिया की बाई 2030, क्योंकि 830 गीगावाट तक, 830 गीगावाट तक की एनर्जी वो प्रोड्यूस कर देगी। लेकिन जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, मिनरल्स और कंपोनेंट्स उसके लिए चाहिए, कॉपर चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, लिथियम चाहिए, सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, ये आपका पीटी का क्वेश्चन बन गया। वो कहाँ से आएगा? क्योंकि आपको सोलर पैनल्स बनाने पड़ेंगे, आपको विंड टर्बाइंस बनानी पड़ेंगी, आपको बैटरीज बनानी पड़ेंगी। तो यानी 38% कॉपर, 38% जो कॉपर है पूरे वर्ल्ड का, वो चिली और पेरू प्रोड्यूस करते हैं। वहां पर लेफ्ट गवर्नमेंट्स हैं। जैसा अभी अभी हमने बात की थी, लेफ्ट गवर्नमेंट सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन में बिलीव नहीं करती है, वो अनरिसेप्टिव है प्राइवेट माइनिंग के लिए। और चाइना जो है 47% कॉपर स्मेल्टिंग को और 42% कॉपर रिफाइनिंग को कंट्रोल करता है। तो अब इंडिया कहाँ गया भाई इस बीच में? इंडिया तो रह गया। इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया अगर हम बात करेंगे, जो कि इंडिया के रिसोर्सेज अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज के अंदर कोबाल्ट है, निकल है, हैवी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इनको हमें निकालना ही पड़ेगा, ऑब्स्टेकल्स को हटाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज आप एग्जांपल देखिए, जर्मनी और यूक्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं तो बार बार आता है कि यूक्रेन और जर्मनी के बीच में जो गैस पाइपलाइन है वो एक तरीके से वेपन बन गया है, वो एक तरीके से रशिया के हाथ में हथियार बन गया है। So do you think India should also be in the same precarious situation down the line? That is why energy security हमारे लिए बहुत important है। We must have 30 days consumption and 30 days transmission and battery storage system under all circumstances. दूसरा, गवर्नमेंट को ग्रीन इंसेंटिव्स देने चाहिए, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मेंस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी इनडायरेक्टली पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स के अंदर भी कहीं ना कहीं टॉपिक आएगा, पीएलआई होता क्या है? तो पीएलआई के अंदर जो है आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करेगी, जिनका कार्बन जीरो टारगेट का ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, कार्बन जीरो टारगेट। कि टैक्स क्रेडिट दो, सब्सिडीज दो, तब जाके कुछ होने वाला है। तब आपको सोलर पैनल मिलेंगे, विंड टर्बाइन मिलेंगी, बैटरी मिलेंगी। सिर्फ मात्र जो है थोड़ा बहुत ग्रीन बसेस चलाने से, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने से, कोलार या फिर तेलंगाना के किसी राज्य, तेलंगाना के किसी डिस्ट्रिक्ट में, या फिर सुदूर कोने उड़ीसा के बोलंगीर कालाहांडी में फर्क नहीं पड़ने वाला। असली भारत वहां भी बचता है। हम इंडिया की बात नहीं करना चाहते, हम भारत की बात करना चाहते हैं। दैट इज वाई आवर वे ऑफ टीचिंग, आवर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज नॉट जस्ट क्लासरूम बेस्ड, इट इज मोर देन दैट। तो डिमांड, कंजर्वेशन और एफिशिएंसी की बात अगर हम करें तो हाई गैस प्राइसेस हैं वो कम नहीं होंगे इंडिया को, लेकिन यूज अपना देखना पड़ेगा। उसके बाद सातवां अगर पॉइंट देखा जाए तो इंडिया को रिटेनिंग और अपस्किलिंग आनी चाहिए जॉब्स के लिए। जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेकर बाकी एनर्जी सेक्टर की बात है, साइंस की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है। आठवां पॉइंट ये कि एनर्जी डिप्लोमेसी हमें यूज करनी आनी चाहिए, इंटरनेशनल एनर्जी सप्लाई चेन में हमारा रोल होना चाहिए। नौवीं बात ये कि होलिस्टिक गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्ट्रक्चर होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को पॉजिटिव प्रोएक्टिव होना चाहिए। रूट एंड ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि एक रूट हो गया, यानी कि जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हो गई और उसके बाद पूरे भारत और विदेश में उसके ब्रांचेस फैले हुए हैं। लेकिन क्या उससे हमारा मोस्ट इफेक्टिव वर्क कल्चर चल रहा है? मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि आई वांट लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। तो कैसे सच है वो, ये आपको सोचना पड़ेगा। और पॉलिटिकल स्टेटमेंटशिप, जो कि हमारे गवर्नमेंट में भी दिखाई देती है कि जो रीजंस हैं पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स से, सोसाइटी के, उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक कोट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, वी ऑल नो व्हाट टू डू बट वी डोंट नो हाउ टू गेट री इलेक्टेड वंस वी हैव डन इट। मैंने मीनिंग देयर बाई कि हम सब जानते हैं सही काम कैसे होना चाहिए, लेकिन अगर आप वो सही काम वाकई कर देते हैं तो क्या आप दोबारा चुनाव जीत पाएंगे? तो चुनाव जीतने की एक प्रक्रिया और साथ में सही चीज करने की प्रक्रिया, दोनों में बहुत फर्क है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, चाइना ताइवान पे मान लो अटैक करता भी है तो अपने आप में कैसा मिस एडवेंचर है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करेगा, हमने ये बात मान ली। और जो है आर्टिकल 51 यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये रहा, मैंने हाईलाइट किया है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है चाइना की जो वो बात है, ये मैंने अभी अभी ब्लू कलर से हाईलाइट किया, आप देखिए इसको। यूएन चार्टर का आर्टिकल 33 की बात हो रही है, तो ये इंडिया को देखना पड़ेगा कि इट मस्ट सपोर्ट एनी सच एक्शन विच इज अगेंस्ट चाइना व्हेन चाइना इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अटैक और हम हाउ
गोइंग टू कंट्रोल ताइवान। ये इसका एक आर्टिकल है, इस पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन इंटरव्यू के अंदर डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। ऑन माई एक्सट्रीम, आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपके आ रहा है कि आपने एयरक्राफ्ट करियर तो बनाना भूल गया, लेकिन आपने बुलबुल के एरोडायनेमिक्स नहीं बन पाए। क्या मतलब है इस कार्टून का? टीचर्स डे के ऊपर ये कार्टून कहना चाहता है कि आपने एयरक्राफ्ट करियर बनाने का मतलब है आपने बड़ी बड़ी चीज़ें सीख ली, आपने ट्विटर, आपने इंस्टाग्राम, आपने सब कुछ सीख लिया, लेकिन वाकई क्या आप फ्रीडम ऑफ थॉट, या वाकई अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ, आपने जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन करने की सोच लिया, आपने कोचिंग भी ले लिया, आप 2 साल दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और हैदराबाद और चेन्नई और कलकत्ता सब जगह आप रह लिए, लेकिन क्या आपने वाकई जो उसके एरोडायनेमिक्स हैं, जो एग्जाम के फंडामेंटल्स हैं, क्या आपको कोई सिखा पाया? ये एक सोचने की बात है। अब क्वेश्चन एक और आता है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि देयर आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीचर्स, वो स्टूडेंट से रिलेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आज टीचर्स डे है, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसी केस स्टडी देनी पड़ेगी जिसमें ऐसे गांव में टीचर्स हैं जिन्होंने पंचायत के अंदर बिफोर देयर रिटायरमेंट दे हैव स्टॉप्ड टेकिंग प्रमोशन सो दैट दे कैन रिमेन एट द सेम विलेज एंड दे आर एबल टू पुट देयर बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। आपको ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। नई पेंशन पॉलिसी की बात और है, लेकिन पुरानी पेंशन के अंदर जो है टीचर की बहुत ज़्यादा, आर्टिकल ये कहना चाहता है कि एक सोशलिस्टिक वैल्यू थी जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज की डेट में चिल्ड्रन की एजुकेशन जो है कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए जो है स्कूल जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स की जबकि फीस बहुत ज़्यादा है। जस्टिस JS वर्मा साहब ने, देयर वाज अ कमिटी सेटअप बाय हिम एंड देन ही वाज लुकिंग इनटू द इश्यूज कि टीचर्स एजुकेशन की पैथोलॉजीज क्या है, टीचर एजुकेशन की प्रॉब्लम क्या है। आज भी भारत में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप 90,000 रुपये दीजिए, कहीं से भी आपकी बीएड हो जाएगी, लेकिन ऐसा रियली में होना नहीं चाहिए, इट्स ए पिटी। अब पेरेंट्स जो हैं, आपका एक एग्जांपल है, इन द रिसेंट टाइम राजस्थान में देयर वाज एन इशू एंड इट इज कमिंग अप कि एक दलित बॉय, ही वाज हिट इन हिज हेड इन ए प्राइवेट स्कूल एंड ही डाइड। बच्चे जबकि उनको हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड वाज नॉट एबल टू सर्वाइव, वेरी सैड। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट ने मारना बंद कर दिया हो, लेकिन अभी भी मारा जाता है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, भाई इसके लिए आप बताओ आप क्या करोगे? डीसी तो वहां पे भी था ना, डीएम तो वहां का भी था, बट डीएम ने 3 दिन जो है ट्विटर यूज करना बंद कर दिया था, 4 दिन। चौथे दिन बाद से फिर से वही बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी, लेकिन जब बात आई थी इस बच्चे के लिए कुछ करने की, तब उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो क्या वाकई उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की? ये हमारे सोचने की बात है। तो सीसीटीवी क्लासरूम में लगाने से, उसके बाद जो है दिल्ली मॉडल, सिर्फ दिल्ली का ही जो मॉडल जो आप बोलते हो ये कर दिया हमने वो कर दिया, क्या उससे दिल्ली के स्कूल्स के अंदर मॉलेस्टेशन, दिल्ली के स्कूल के अंदर करप्शन, जो बाकी प्रॉब्लम्स है, क्या वो अचानक से गायब हो गई हैं? तो टीचिंग चिल्ड्रन जो है एक सीरियस प्रोफेशन है। नॉन टीचिंग ड्यूटीज जो टीचर्स को दी जाती हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। इंडियन स्कूल टीचर्स जो है एक नए सोशल इकोनॉमिक फोर्सेस के जंगल में आ गए हैं। आज की डेट में आप पहले आईआईटी की तैयारी करते हैं, यू गो टू ए नॉन नॉन स्कूल आप अटेंड करते हैं, नॉन स्कूलिंग से आप आईआईटी जेई या पीएमटी क्रैक करते हैं, उसके बाद आप सिविल सर्विसेज की कोचिंग करने आते हैं, फिर से आप क्लासरूम में जाके बैठ जाते हैं और आप सोचते हैं कि सिविल सर्विस का एग्जाम निकल जाएगा, और इस चक्कर में आपके 5-5 साल निकल जाते हैं। आई हैव माई कपल ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आईआईटी दिल्ली, जिन्होंने एमटेक भी किया, और वो अब जाकर 5-5 6-6 7-7 साल के बाद जब वो मेरे टच में आए और जब हमने वर्क किया, तो पीसीएस के अंदर भी उनका एसडीएम में सिलेक्शन हुआ, लेकिन समय बहुत लग गया। तो इसका क्या जुगाड़ है? क्या ये प्रॉब्लम वहीं से शुरू नहीं होती है कि हम आंख मूंद के क्लासरूम की तरफ भाग लेते हैं और हम सोचते हैं हमारा भला हो जाएगा? तो आप सोचिएगा कि यूपीएससी के एग्जाम का ऐसे आखिर मांगता क्या है? आखिर ऐसे ही टॉपिक्स क्यों आते हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर देते हैं और आपको 1200 वर्ड में उसका आंसर भी लिखना पड़ेगा? तो कहने का मतलब ये है कि टीचर यहाँ पर ऐसे ये कहना चाहता है दैट टीचर इज नॉट ए पर्सन, जिस जो टीचर को आप याद रखते हो, टीचर इज ऐसे पर्सन जिसकी बातें आपको याद रह जाती हैं। यदि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आदमी है द ऐसे वांट्स टू से, तो आप उनको थैंक्स जरूर बोलिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे और लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस आपको दिलाएंगे। इसके साथ ही प्रिसीजन प्रिसीजन फार्मिंग, पीटी और मेंस का बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो ऐसे रिलेटेड था, पर ये पीटी के लिए प्रिसीजन फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। लैंड डिग्रेड हो रहे हैं, टॉप सॉइल जो ऊपर होती है वो खत्म हो रही है, ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीट हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर क्या रियल कॉज है? क्या रियल कॉज है भाई? धरती जो समाप्त होती जा रही है, नेचर जो समाप्त होता जा रहा है, क्या सदगुरु जग्गी वसुदेव का कोई प्रोग्राम चलाने से धरती बच सकती है? कैसे बचेगी? आपको सोचना पड़ेगा। एक्सट्रीम वेदर क्यों आ रहे हैं? यूरोप का इतना बुरा हाल क्यों है? अभी से ही यूक्रेन सर्दी की बात कर रहा है। सो इसका मतलब इट इज सेइंग दैट होमो सेपियंस को करंट फॉर्म में इवॉल्व होने में 2 लाख साल लग गए। 2 लाख। सोचिए आप, इन 1804 फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पॉपुलेशन 1 बिलियन हुई थी। 1804 में भारत की, मतलब पूरे विश्व की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी। इन नेक्स्ट बिलियन 123 ईयर्स में, अगले 123 सालों में नेक्स्ट बिलियन ऐड हो गया, यानी कि 1927 तक हमारी पॉपुलेशन जो है 2 बिलियन हो गई धरती की। फिर साइंस की ब्रेक ब्रेक थ्रू हुई,
उसके बाद जो है नेक्स्ट 1 बिलियन हमारा 1960 तक ही ऐड हो गया था। अब भारत जैसे देश में भी शिप टू माउथ की सिचुएशन आ गई फूड के उसके ऊपर। शिप टू माउथ बहुत ही फेमस फ्रेज है, शिप टू माउथ, यानी यूएस सड़ा हुआ गेहूं हिंदुस्तान भेजेगा और भारत की जनता उसको मर मर के खाएगी, कुपोषण का शिकार होगी। ये फ्रेज है शिप टू माउथ। यानी कि 1960 के बाद मात्र 14 वर्षों में फिर से 1 बिलियन पॉपुलेशन जुड़ जाएगी 1974 तक। और अगला 1 बिलियन आर्टिकल कहना चाह रहा है फिर से 13 साल में जुड़ जाएगी। फिर 6 बिलियन हो जाएगी 1998 तक, 1998 तक। और फिर 7 बिलियन हो जाएगी 2010 तक। और फिर 12 साल में 8 बिलियन हो जाएगी 2022 तक। कितना बेहतरीन नमूना दिखाया है इन्होंने इसके थ्रू। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2, सोशियोलॉजी पेपर 1 एंड इवन पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स की केस स्टडीज में और क्वेश्चंस के अंदर भी, एंड ऑल्सो जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड इवन जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट के पार्ट में आप ये सारा पैराग्राफ अगर ये डेटा आप लेके आते हैं मिनटों में, मिनटों से भी पहले, तो आपके नंबर ज्यादा आना सुनिश्चित है। आपको बस पता होना चाहिए कि मुझे यूज कहाँ करना है। तो इतने सारे क्वेश्चन के बाद आर्टिकल पूछता है कि क्या सारे प्लैनेट्स को धरती पर जो ये इतना कुछ है क्या उसको खाना देने के लिए औकात है क्या नहीं है? केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और सब देने के बावजूद क्या हम जिंदा रह पाएंगे? गवर्नमेंट कर क्या रही है? सिक्किम ने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ली, गंगा के किनारे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, आंध्र प्रदेश भी ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ाने की बात कर रहा है, श्रीलंका का हाल तो आप देख ही रहे हैं। तो यानी आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, कहता है कि भारत को बहुत कुछ करना पड़ेगा। भारत को जो है मेजर जो स्टेपल क्रॉप्स हैं जैसे वीट और राइस हैं, उनको जो है आपको नेचुरल उसमें लेके आना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि और क्या कर सकते हैं। यूपीएससी का जो 150 वर्ड्स का आंसर होगा, तो उसके अंदर आप प्रिसीजन फार्मिंग लेके आएंगे। कमाल की बात, ये मैंने अब तक जितनी बातें की वो प्रिसीजन फार्मिंग के बैकग्राउंड में थी, ये चैलेंजेस थे, ये क्वेश्चंस थे। तो जीआईएस की बात कर लो, यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उस पर 150 वर्ड का एक नोट आपका रेडी होना चाहिए। एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, वो प्रिसीजन फार्मिंग कैसे जुड़ा है, इस पर आपका 150 वर्ड का एक होना चाहिए। सेंसर का यूज करो, लो अर्थ ऑर्बिट का यूज करो। इंडिया का तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सिस्टम है लो अर्थ ऑर्बिट्स का, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं। ड्रोन्स का यूज करो, क्लाउड कंप्यूटर्स का यूज करो। तो ये सारे एग्जाम्पल अगर आप दे देते हैं राइट तरीके से सोच कर, और वो भी मिनटों से पहले, तो कैसे आपका स्कोर मेंस के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा? पीटी के लिए तो ऑलरेडी मैंने आपकी थिंकिंग की यहाँ से बात कर ही दी है कि आपको सोचना कैसे है। 90% जब सब्सिडी यूरिया पे दी जा रही है, तो उसको सोचिए कम कैसे किया जाएगा। आप सोचिए कि प्रिसिजन फार्मिंग को आखिर आप लेके कैसे जाओगे। एक और आर्टिकल मैं यहाँ बात करूंगा हिंदू फोबिया के ऊपर, जैसे आप कहते हैं इस्लामोफोबिया है, तो आर्टिकल कहना चाहता है कि हिंदुओं के साथ भी भेदभाव का वार्तालाप बर्ताव किया जाता है, एंड वी मस्ट एक्नॉलेज इट एंड वी मस्ट टेक अ स्टैंड फॉर इट। सिर्फ इस्लामिक फोबिया नहीं है, वर्ल्ड में हिंदू फोबिया भी है। हिंदू को भी देख के लोग वही व्यवहार करते हैं जो हम मुसलमानों को देख के बात करते हैं कि वर्ल्ड में उनके साथ अन्याय होता है। तो आर्टिकल कहना चाहता है उसके लिए हिंदू ग्रुप्स को यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, बाकी कंट्रीज के अंदर स्टेप्स उठाने चाहिए। हिंदू फोबिया और हिंदू नेशनलिज्म दोनों में फ़र्क है। हिंदू नेशनलिज्म पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन हिंदू नेशनलिज्म के नाम पर अगर किसी कोई दूसरे समाज का व्यक्ति हिंदुओं के साथ ही नफरत या हेट की भावना रखता है तो ये गलत है। इसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को वर्क करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का और रोल होना चाहिए, इसके लिए पब्लिक सेक्टर को भी रोल होना, यूनिवर्सिटीज और स्कॉलर्स का भी इसमें रोल होना चाहिए। दैट इज व्हाट द आर्टिकल वांट्स टू से। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गूगल के टाइम में अगर आज भी अगर जूम और गूगल ना हो, तो मैं आपको इतना एडवांस जो एक मैं आपको ग्लिम्स दे पा रहा हूँ ये ना दे पाता। ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स, बिकॉज इसको सस्टेनेबल तरीके से करने के लिए वी हैव डिफरेंट कोर्सेज टू ऑफर, एंड वी आर वर्किंग एग्रेसिवली विद आवर स्टूडेंट्स। एवरी ईयर वी प्रोड्यूस वंडरफुल रिजल्ट्स एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो। पाकिस्तान में और ज़्यादा फ्लडिंग आई है, आप इस पर नज़र रखिए, आप सोचिए कौन सा फिनोमिना है, और आप ये भी सोचिए कि इंडिया कैसे इन चीज़ों से बच सकता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान, जैसे मैंने बात की थी, दोनों में सेम ही पैटर्न है। यूरोप रिलीफ पैकेज दे रहा है यूक्रेन को, बस आपको इतना सोचना है कि क्यों। टर्किश जो शिप हैं वो इसराइल में डॉक हुए, तो इसका मतलब टर्की और इसराइल के जो रिलेशंस हैं जो बहुत ही फ्रॉस्टी थे, तो आपको देखना पड़ेगा कि टर्की और इसराइल के रिलेशंस, आप मैप खोलिएगा, आप टर्की की आपको 2 लाइनों में पता होना चाहिए कि टर्की जो है अगर पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट करता तो इसका मतलब इसराइल उसके अगेंस्ट रहेगा। तो नेटो मेंबर है टर्की, और वो जो है हमास, जो पैलेस्टाइन इस्लामिस्ट मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक टेररिस्ट ग्रुप है वेस्टर्न वर्ल्ड की नज़रों में, उसको सपोर्ट करता है। लेकिन फिर भी टर्की और इसराइल के रिलेशन सुधर रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा। यहाँ पर मैं टाइफून हिन्नोम नॉर का नाम दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन।
चिली जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन वोट करने जा रहा है, हमें देखना पड़ेगा लेटिन अमेरिका में आखिर ऐसा हो क्या रहा है। नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है इनडायरेक्टली, क्योंकि चिली एक जो है प्लूरी नेशनल स्टेट बनने जा रहा है, यानी कि वो ऑटोनॉमस इंडिजिनस टेरिटरीज बनाएगा, इंडिजिनस पीपल को स्पेस देगा। और साथ साथ में यदि कॉन्स्टिट्यूशन पास हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा जो जो उनका नेचुरल जस्टिस सिस्टम है, एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम है इंडिजिनस पीपल का, उनको भी वो भाव देने जा रहा है, उनको भी वैल्यू देने जा रहा है। क्योंकि अ, क्योंकि चिली में 13% पॉपुलेशन आउट ऑफ द कंप्लीट 19 मिलियन वो जो है इंडिजिनस है। तो क्या हिंदुस्तान जैसी कंट्री जो एक प्रोग्रेसिव और हैप्पी डेमोक्रेसी है वो अपने चैलेंजेस से कैसे लड़े, बस आपको इतना सोचना है। एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस बराक ओबामा साहब को ग्रैमी अवार्ड मिला, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवर ग्रेट नेशनल पार्क सीरीज में उनको मिला। तो हिंदुस्तान में आपको सोचना चाहिए एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एज ए फॉरेस्ट कंजर्वेटर, एज ए इन्वायरमेंट फ्रेंडली पर्सन, और इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछा जाए, आपके स्टेट के लिए पूछा जाए कि आप इन्वायरमेंट को अपने राज्य में कैसे प्रोटेक्ट करोगे, तो उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक आंसर्स होने चाहिए। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में दो पड़ाव बन चुके हैं। एक चाहता है कि रिवोल्यूशन आए, और वो रिवोल्यूशन लाने वाला जो धड़ा है वो ये चाहता है कि गूगल हो और प्राइवेटाइजेशन हो कम्प्लीटली। लेकिन श्रीलंकन पॉलिटिशियंस और श्रीलंकन गवर्नेंस सिस्टम का कहना है कि हमें जो है इंडिया का एंकर सपोर्ट चाहिए, और हम कम्प्लीटली जो है डिसरप्शन में नहीं जा सकते। मैंने हाईलाइट ऑलरेडी किया है। इनका कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ श्रीलंका की बहुत अच्छी है, हेल्थ इंडिसेस बहुत अच्छे हैं, सोशल इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं, और हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं है। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी गवर्नमेंट ही रेगुलेटर है, प्राइवेट सेक्टर स्टेट मोनोपोली है, और वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लूज कर रहा है। ट्रेड यूनियन जो है प्राइवेटाइजेशन नहीं करने दे रही हैं, वो ना करने देंगी। हमारा बैंकिंग सिस्टम भी स्ट्रेस्ड है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एयरलाइंस, पेट्रोलियम बोर्ड, सब कुछ श्रीलंका का जो है वो बोरो कर लेता है स्टेट बैंक से। इसीलिए मैसिव रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत है। तो ये स्ट्रक्चरल इश्यूज कहते हैं इसको। आईएमएफ ने बोला कि भाई हम इतना सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आईएमएफ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाह रहा है क्या उसको श्रीलंका कर पाएगा। इंडिया ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, इट इज़ एक्नॉलेज्ड, एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री और एग्रीमेंट इंडिया ने आगे बढ़ के साथ किया। तो इसीलिए क्या वर्ड यूज़ किया श्रीलंकन एनवाई ने, उन्होंने कहा हमारी पॉलिटिक्स अनटाइडी है, हमें इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की ज़रूरत है, हमारा स्टेट पोलराइज्ड है, एक्सट्रीमली वोलेटाइल सोसाइटी है, ज़रा सी अगर बात होगी तो हम लोग जो है सड़कों पे आ जाते हैं। बहुत ही ब्रूटल इंसरक्शंस पहले भी हुए हैं। इंसरक्शन का मतलब है कि आपने पुलिस को छोड़ दिया और आपने जनता को कुचल दिया, या जनता ने सरकार को कुचल दिया, जैसा कि अभी हो रहा है। तो यानी कि पहले भी ऐसा हुआ है श्रीलंका में। इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि पॉलिटिशियंस के घरों को और पॉलिटिकल कल्चर को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। तो लेकिन कहने का मतलब ये कि आप इंडिया से कुछ कंपेयर कर सकते हो क्या? क्वेश्चन ये नहीं आएगा श्रीलंका में क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये आएगा श्रीलंका में अच्छा कैसे हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म कैसे हो सकती है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर इंडिया का रोल क्या हो सकता है। मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। एक और यूपीएससी इंटरव्यू के लिए सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं, तो लॉन्चेस के विंडो क्यों होते हैं, स्पेस मिशन जो है किसी भी समय क्यों नहीं दे देते और बात खत्म। यूपीएससी की तरह ऐसा क्यों होता है कि एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट, पांच अटेम्प्ट, छह अटेम्प्ट। तो इसका आंसर उन्होंने देने की यहाँ पर बात की है। उन्होंने कहा है कि कैसे जो है वेदर का रोल है, और मैंने हाईलाइट भी किया है कि वो जो है अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात करता है। कैसे कि सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की वजह से, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अर्थ गोज राउंड एंड राउंड अराउंड सन, और उसकी स्पीड भी बताई हुई है 1.1 लाख किलोमीटर पर आवर। तो ये जो नेचर है रिवॉल्विंग की ऑर्बिट की, ये डिसाइड करती है डायरेक्शन क्या होगी मूवमेंट की, और वो चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। अगर मिशन का डेस्टिनेशन मून है, अगर मिशन का डेस्टिनेशन मून है तो वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है एट द टाइम ऑफ लॉन्च। तो रॉकेट जो है उसको बूस्ट मिलेगा, और रॉकेट जो है वो अर्थ के मोमेंटम से चला जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट केस में, इफ द अर्थ इज मूविंग इन द डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू वेयर डेस्टिनेशन इज लोकेटेड, अगर अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही है, जो आपका डेस्टिनेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लोकेटेड, तो फिर क्या होगा? रॉकेट को नेगेटिव मोमेंटम मिलेगा। अरे सीधी बात है भाई, अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं और हवा के साथ आपको भाव मिल रहा है तो आपकी पतंग ऊपर उड़ेगी। लेकिन हवा अगर उल्टी चल रही है और आपको पतंग उसी तरफ उड़ा रही है, तो नेचुरली आपकी पतंग ऊपर नहीं उड़ पाएगी, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मिशन कहाँ से जाएगा, मिशन साल के किस समय जाएगा, मिशन का फेवरेबल लॉन्च टाइम क्या होगा, ये सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती हैं। तो इसीलिए अर्थ अपने रोटेशन के ऊपर, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। अगर रॉकेट जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से रोटेट किया जाएगा तो इसीलिए उसको अर्थ की रोटेशन स्पीड मिल जाएगी। ये पीटी का साफ साफ सा क्वेश्चन बनता है।
अपने शेप की वजह से, क्योंकि अर्थ जो है बीच से बल्ज है, वो सेंटर में बल्ज है, तो अर्थ रोटेट फास्ट करती है इक्वेटर के ऊपर, ना कि पोल्स के ऊपर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात सोचने की है कि बहुत सारे जो हमारे रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हैं वो इक्वेटर के आसपास बने हुए हैं। प्रिसाइजली वो हैवर प्रोमिनेंट लॉन्चिंग साइट, स्पेशली जो हैवर सेटेलाइट्स हैं वो जो है इक्वेटर के पास ही हैं। लेकिन और भी इसके अलावा फैक्टर्स हैं, मैंने आपको कुछ फैक्टर बताने की कोशिश की जो साइंस एंड टेक का पार्ट है। अब बात करते हैं हम एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एटीसी होता क्या है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। एरोड्राम एंट्री परमिट होती है, ऑब्वियसली अंदर जाने की बात है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही जहाज से कम्युनिकेट करता है, ट्रैक करता है। एटीसी एक टावर भी होता है जो कि ऊपर ऊपर करके घूमता रहता है। तो एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि प्राइमरी पर्पस जो एटीसी टावर का होता है वो कोलिजन है, उसका रोकना दो जहाजों के बीच में। क्योंकि आप एविएशन मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे तो डायरेक्टली इसका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्पेशल प्रिविलेजेस के ऊपर जो बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अक्टूबर 2007 में कर्टसी की बात की गई थी कि वो अलाउ कर सकते हैं टर्मिनल के अंदर, लेकिन जो है एमपी एटीसी में घुस सकते हैं नहीं घुस सकते हैं इसकी कोई बात नहीं की गई। तो कहने का मतलब है, आप केस स्टडी के तौर पे जनरल स्टडीज पेपर 2 में जब बात आती है कि भैया नेताजी जो है कहाँ कहाँ तक बैठ सकते हैं और एमपी बाबू कहाँ कहाँ जाएंगे और नहीं जाएंगे, वहाँ आपको क्रिटिकली अगर थोड़ा लिखना हो तो आप लिख दीजिएगा कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। साइड में एक और ऐड हम पढ़ रहे हैं कि स्टेप अप इंडिविजुअलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है और बार बार मैं उठाऊंगा कि आप जो है एक स्पेशलाइज्ड मेंटरशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्लासरूम में जो टीचर है फिर वो कौन है, टीचर बड़ा हुआ कि मेंटर बड़ा हुआ। और अगर बिना सर पैर के आप कुछ भी गाइड करते हैं, कुछ भी अगर आप उस चीज को लेते हैं, तो हर आदमी दुनिया में मेंटोर है। हमारे माता पिता हमारे सबसे बड़े मेंटोर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बाजारवाद को देखना होगा कि बाजारवाद किस दिशा में लेके जा रहा है और क्यों लेके जा रहा है। आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट ऑफ रेमन मैग्सेसे ऑफ फिलीपींस। तो उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो उनके नाम से दिया गया है, एक ऑटोनॉम, एक जो है एक मैकेनिक थे शुरू में वो, और बाद में जो है वो कम्युनिज्म को उन्होंने ज्वाइन, कम्युनिज्म को उन्होंने मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस जो थी वो बनी। और बाद में जो है 1946 के बाद जो है आप कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन हुआ। और मैग्सेसे जो है नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी बन के बाद में प्रेसिडेंट बने। और मैग्सेसे जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर के, उन्होंने जो है टू प्रॉन्ग सिस्टम को रिफॉर्म किया, मिलिट्री कैंपेन्स किए, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री पॉलिसीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनका इम्पैक्ट हुआ। तो मैग्सेसे जो है उन्होंने जो है कुल मिलाकर यूएस, अगर मैं आइडियोलॉजी की बात करूँ, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो मैग्सेसे अवार्ड जो है वो बाद में सेटअप किया गया। और इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, मैंने लिस्ट बना दी है। विनोबा भावे, मदर टेरेसा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सत्यजीत रे, महेश्वरी देवी। और क्वेश्चन ऑलरेडी भी आ भी चुके हैं। अंशु गुप्ता 2015 में, बेजवाड़ा विल्सन 2016 में, और रवीश कुमार को भी ये अवार्ड 2019 में मिल चुका है। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। कमिंग टू इकोनॉमी, सो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट साइरस साहब का ही पहले आया है, लेकिन उससे भी बड़ा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग ड्रीम 11 और ये 11 और जोखिम का काम है, और आप रम्मी भी खेलिए और आप पत्ते भी खेलिए, और फिर हर ऐड कहता है कि आपको लाखों करोड़ रुपए मिलेंगे, भाई बस तू खेल जा। तो टैक्समैन का ये कहना है हमारे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। तो आपका यूपीएससी में मेंस के अंदर ये क्वेश्चन कल को आ सकता है, विच इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द टैक्सेस। जो ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजीज हैं, और अगर इसके लिए कोई आपका लॉ आता है या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं, वो कैसे इसको कंप्लाई करेंगे। तो इसीलिए टैक्स अथॉरिटीज बोल रही हैं लोगों को कि भाई आप अपने आप रिपोर्ट कीजिए। यदि आप इस प्रकार के 50 करोड़ से ज़्यादा वर्थ का अगर अनडिक्लेयर्ड टैक्स पेमेंट अगर आएंगी, तो टाइम्स टू कम जो कहने की बात है, इन स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट लुक फॉर इट, एंड वो दोनों तरीके से सरकार को पैसा मिलना चाहिए। ओके, देन वी आर मूविंग फर्दर। बाद में एक और एडिटोरियल पेज है जिसके अंदर टेंडर्स की बात है। इससे पता लगता है कि सरकार जागरूक होकर अपना कार्य कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस का भी एक बहुत अच्छा साइड में है, आई गेट द इनसाइड इन्फॉर्मेशन एंड गेट इनसाइड द इन्फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत कोट है। वी मस्ट प्रैक्टिस फॉर सिविल सर्विसेज ऑल्सो। फिर उसके बाद आया राफेल नडाल ने कैसे नाक पे चोट लगने के बावजूद भी जो है वर्ल्ड नंबर 2 उन्होंने डिफीट किया, और राउंड वो जो है राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग बात है, चाहे राफेल नडाल हो चाहे सेरेना विलियम्स हो। हम और आगे चलते हैं। देन वी आर कमिंग टू द क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान मैच। उससे हमने सीखा कि कैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम भी टी20 की तरह ही है। अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाकी क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे। इंडिया ने पहले मैच में किसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुझे कहना चाहिए डिफीटेड पाकिस्तान, बट देन इन द सेकंड मैच इंडिया प्लेड ऑसम, बट देन स्टिल वी वर नॉट एबल टू विन द मैच। तो यूपीएससी का एग्जाम भी उसी तरह का है। उसके अंदर
डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बहुत बड़ा रोल है, लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट इतने बड़े नहीं है। इसीलिए आप खुद सोचिए, मेंस एग्जामिनेशन के अंदर लास्ट में हर एग्जाम के बीच में कितना कम टाइम दिया गया है। ऐसा क्यों दिया गया? अगर पढ़ने में आपको 2-2 साल लग रहे हैं तो लिखने में आपको 3 घंटे कैसे लगेंगे? इन्हीं क्वेश्चन के साथ आई लुक फॉरवर्ड टू योर आंसर्स एंड यू आर वेलकम। प्लीज click the bell icon and do subscribe and get into the winning league for with us in order to get success in civil services exams in all subjects and also in different areas. Thank you very much.